1 year Bible reading plan: Titus 1 chapter, 2 chapter, Jeremiah 29 chapter, 30 chapter. 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान: तीतुस 1 अध्याय, 2 अध्याय, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 29 अध्याय, 30 अध्याय. हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. हम टाइटस 1 चैप्टर, 2 चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. पवित्र आत्मा आपके वचन सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बनने हैं खुदा, हम उसको चलना भी है. पवित्र आत्मा, अगर हम उसे चलेंगे नहीं तो उस वचन के अंदर का जो ताकत है वो हमारे लिए नरिशमेंट, हमें ताकतवर शक्तिशाली नहीं बना सकेगा. हम सिर्फ एक बोलने वाले मसीह रहेंगे, किसी भी परिस्थितियों में दोष लगाते हुए, डगमगाता हुआ विश्वास लेकर चलने वाले, डरने वाले, पीछे हटने वाले ऐसे हो जाएंगे. हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा. अभी हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में से सीखा कि वचन कहता है ऐसा, निश्चित आधार रखने जैसा वो वचन होता है परमेश्वर का, जिसके ऊपर हम अपना भरोसा आराम से रख के निश्चिंत हो सकते हैं. हम अपने भरोसा रख कर निश्चिंत हो सकते हैं पिता. हमको उस भरोसे का जो निश्चितता में होना चाहिए, वचन जितना प्रमाण चाहता है कि हमने उंडेल देना है हमारा भरोसा उसके ऊपर टेक लेने में, उतना उंडेलने का, उतना मात्रा विश्वास का खोल दीजिए हमारे अंदर, उसको निकलने दीजिए उस मात्रा को, हमारा आत्मविश्वास उस वचन के ऊपर आने दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हम कुछ तो देख पाए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचनों की गवाहियों को बनते हुए. नासरी यीशु के नाम में आज से मैं यही प्रार्थना आपको करते रहूंगी कि ऐसा कुछ कर पवित्र आत्मा कि हम अपना विश्वास सब जगहों से हटाकर तेरे वचन के कही हुई बात में पूर्ण रूप से उंडेल पाए, ताकि हम शक्तिशाली बन जाए. नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन. टाइटस 1 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, फिर हम यही अध्याय 1 और 2 अध्याय हिंदी में भी पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. Titus chapter 1. Why Titus was left in Crete, how ministers should be qualified, etc. First verse. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour. To Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, and temperate.
holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. One of themselves, even a prophet of their own, said, the Cretans are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. But even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. दूसरा अध्याय चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन डायरेक्शंस गिवन टू टाइटस व्हाट द गॉस्पेल टीचeth. First verse, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. The aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Young men likewise exhort to be sober minded in all things, shewing thyself a pattern of good works in doctrine, shewing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again, not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. एक्चुअली मैं ये बात इंग्लिश में जब पढ़ रही थी तब मुझे बहुत प्यारा अनुभव मिल रहा था. ये अनुभव था कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए. बहुत आसान शब्दों में वर्णन किया है इस वचनों में. तो हम पौलुस जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस बात कर रहा है हमारे साथ, ओके, ऐसा वो
कुछ असर है उन वचनों का। हम ध्यान से सुनेंगे अभी क्या सिखा रहा है, क्या समझा रहा है वो हमको। वो प्रचार है और वो प्रचार के रूप में ले लेना है और हमने उसको मान लेना है वो जो कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है वो। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। हम पहले अध्याय पहले पढ़ेंगे। अभिवादन पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य को की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास के सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्रेते में तीतुस का कार्य, 5 वचन से आगे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। और वह विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अगर आप पानी में डुबकी लगाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, हाँ, आप अशुद्धता में गिनती किए हुए रहते हैं। समझ में आया आपको? आपका शरीर जो है, पानी में डूबने से आप पाप के लिए मर जाते हैं और शरीर पानी में से जब ऊपर आता है तब आप शुद्ध किए हुए परमेश्वर के जन बन जाते हैं। ठीक है? और परमेश्वर का शुद्ध जीवन का क्लेम, दावा आपको मिल जाता है। हाँ, आपकी सफलता में परमेश्वर बना रहता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप अशुद्ध हैं और पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को मसीही जीवन जैसा ही जिए, तो नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा। आपको बंधन तोड़कर निकलना पड़ता है। ओके, आपको चौखटे तोड़कर बाहर आना पड़ता है, आपको हियाव बनाकर आना पड़ता है। ओके, देखो, अगर आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, तो वो आपको शैतान असंभव बता रहा है। हो सकता है आपके परिवार के लोग मानते नहीं है, हाँ, हो सकता है आप अगर आपके परिवार से विरोध करके
आप पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लिए तो हो सकता है आपके ऊपर विपत्ति कर देंगे, विपत्तियां डालेंगे वो लोग, आपत्तियां डालेंगे आपके ऊपर, हो सकता है आपका ये भय है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारा भय जो है वो आपके ऊपर इसीलिए रखे हैं कि आप पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुद्ध ना बने। समझ में आया? आप शुद्ध बन गए तो अशुद्ध के लिए आप नहीं रहते हैं। हाँ, आप शुद्धता के लिए चले जाएंगे आगे। हाँ, आप और आपका विरोध बताएंगे अशुद्ध बातों के ऊपर, ठीक है, और ज़्यादा अविश्वासियों से आप दूर भागने लगेंगे। हाँ, तो आप ज़्यादा ही ज़्यादा जो पाप की जगत है उसकी डिमांड में से आप अपने आप को छुड़ा कर पवित्रता के डिमांड में अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, निवेश करना शुरू करेंगे। ओके, तो आप पाप की बात नहीं मानोगे, अधर्म की बात नहीं मानोगे, दुष्टता की बात नहीं मानोगे, तो आप शुद्धता की बातें ही मानने वाले बनेंगे। तो आपके द्वारा जो प्रॉफिट मिल रहा है पापियों को, जो आपके द्वारा प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहा है, वो उनका बंद हो जाता है। याद कीजिए उसको, जब वो स्त्री जिसको पत्रस या पौलुस, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वो डांट दिया था उसको और उसने बोला क्या है तू लगातार मेरे बारे में चीखते रहती है, इस रोड से मैं जाता हूँ आता हूँ तो। ओके, और उसने झटका मार के उसको डांटा कि यीशु के नाम में तू निकल जा उसके अंदर से। तो वो आत्मा जब निकल गई तो उस लेडी के साथ, उस स्त्री के साथ सारे लोग गुस्सा हो गए और जिसने उसको निकाला वो चेला जो प्रेरित था उसके ऊपर भी गुस्सा हो गए, क्योंकि उनका कहना था ये महिला तो, ये लेडी तो बहुत फायदे करा रही थी हमारे, उसके अंदर जो शक्तियाँ आती जाती रहती थी वो शक्तियाँ हमारी बहुत काम की थी और उसके कारण हमारे बहुत बड़े बड़े व्यापार बन रहे थे। हाँ, बड़ी बड़ी सफलताएं हमको मिल रही थी। अब वही शक्तियों को तूने धुड़का दिया तो अब वो निकल गई है। अब ये महिला क्या काम की रह गई है, अब हमारी तो कोई काम ही की नहीं है। ऐसा बोलकर वो झगड़ने लगे, प्रेरितों के साथ भी और वो महिला के साथ भी। समझ में आया? तो आप जब शुद्ध हो जाते हैं तो आपका प्रॉफिट दुष्टता के जगत को नहीं मिलता है, इसके कारण वो आपको शुद्ध जीवन में आने नहीं देते हैं, ताकि आप उनके रोज के लिए रोटी बन के उनको खाने पीने का इंतजाम में आप बने रहे उनके सामने। समझ में आ रहा है आपको? अब आप उनकी रोटी बन के बैठना चाहते हैं और ऐसी अवस्था में अगर आप मृत्यु हो जाए आपकी, तो आपको परमेश्वर के सामने बोलकर फायदा नहीं होगा कि मैं क्या करूं, मेरे लोग तो मान नहीं रहे थे। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लोग मानते हैं आपको या नहीं मानते हैं, उससे आप, इससे ज़्यादा बड़ा बात आपका ये है कि आपको डुबकी लगाकर पानी का बपतिस्मा लेना है, आपने खोजना शुरू करना है। देखो 38 साल का जो लंगड़ा था, बीमार इंसान था, वो उस पुल के पास बैठ के रहता था जिसमें गर्म पानी का जो झरना है, वहाँ पर वो गर्म पानी हिलाने के लिए स्वर्गदूत उतर आते थे और वहाँ पानी हिलते ही सबसे पहला जो उतर जाएगा वही चंगा होता था। तो वो 38 साल इंतजार किया, रोज आंखों से देखता था, वो स्वर्गदूत आया, पानी हिलाया, कोई उसमें गिरा और पहला था वो चंगा होके चला गया। रोज देख रहा था वो, रोज 38 साल का वो इंसान देख रहा था, रोज देख रहा था वो, क्योंकि स्वर्गदूत रोज आ रहे थे। समझ में आया? तो आपको जलाया जाता है। वो 38 साल का उम्र में बैठे इतना समय वो जलता रहा। सब जा रहे यहाँ से, नए बीमार लोग आ रहे, सब पुराने जा रहे, नए आकर यहाँ बैठे हैं, सब पुराने चले गए, नए भी चले गए और नए आ रहे, मैं तो अभी भी यहाँ पर हूँ। 38 साल का नज़ारा उसने जल जल के बिताया, जल जल के।
हाँ, रोता रोता बिताया कि मेरे लिए मैंने क्या ऐसा धर्म किया है, मेरे साथ क्या नाराजगी है परमेश्वर की, मुझे क्यों ऐसी अवस्था में रखा है, मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही है। क्यों पता है? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था पता है? उसका ध्यान उस जगह में था कि स्वर्गदूत आया, पानी हिल गया, अब पहला नंबर मेरा लगना चाहिए। प्रोग्रामिंग उसने खुद किया था अपने दिमाग का, समझ में आया? उसके प्रोग्रामिंग में वो चेंज नहीं कर रहा था। 38 साल का दिमाग उसने एक ही सुर और ताल में चलाया था, इसकी वजह से सफलता उसके पास नहीं थी। समझ में आया? उसके सुर और ताल को बदलने के लिए यीशु को उसके पास जाना पड़ा और उसके सुर और ताल को डिस्टर्ब करके नया सुर और ताल उसको दिखाना पड़ा। भाई, ये भी एक तरीका है तेरा चंगाई लेने का। हाँ, वो जब यीशु उसके सामने गया तो यीशु ने उसको पूछा, तेरे लिए मैं क्या करूं? तो उसने क्या बोला, मैं इतना मुश्किल में हूँ, कोई मुझे नहीं सहारा देता है कि मुझे पहला पानी में उतारा जाए जब स्वर्गदूत उतर कर आते हैं, पानी हिलाते हैं। समझ में आया? तो उसने अपनी ही सुर और ताल की धुन बजाई उसके सामने, यीशु के सामने। ओके, यीशु ने बोला, अब तू बता तू क्या चाहता है? तो वो बोला, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो यीशु ने बोला, चल उठ, अपनी खाट उठा ले और चलने लग। वो चला गया, अपने घर चला गया। समझ में आया? तो आपका सुर और ताल आपको बंधन में बांध के रखते हैं। आपको ध्यान देना है कौन से सुर और ताल, आप कितने सालों से आप वही डायलॉग में चल रहे, वही दशा में चल रहे, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है वो ही सुर ताल है जिसके अंदर से आपका रिजल्ट आना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सुर ताल बदल देता है। समझ में आया? तो हमने प्रभु यीशु को मांगना है, प्रभु 1 साल हो गया मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, मेरा सुर ताल अब बदल, कुछ नया सुर ताल लगा दे मेरे अंदर। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बपतिस्मा हो जाए। खत्म करो बात, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला वो परमेश्वर है। वो नया तरीका डालेगा और आपको डुबा देगा पानी में, बपतिस्मा देगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और आप अपना जीवन का जयवंत जीवन का अनुभव लेना शुरू कर देंगे। आप बिना विपत्ति के, बिना आपत्ति, बिना डर के। हालेलुया। तो आपके सुरताल आपके समय ना बदलने का कारण बनता है। हालेलुया। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। ओके, आप अशुद्ध जीवन के लिए नहीं है, शुद्ध होने के लिए है। और सुर ताल आपकी प्रॉब्लम है, जो आप सोच रहे हैं कि ये सुर ताल अगर मैं बिगाड़ दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, रिजल्ट तो मुझे नहीं आएगा बल्कि परेशानी ही आएगी, ऐसा आपका विश्वास है। ओके, तो आप प्रभु यीशु को बोलो, अब बदल दे मेरा सुर ताल, अब तेरे सुर और ताल जो है उसके अनुसार तू मुझे पानी का बपतिस्मा तैयार करके दे दे। ओके, और जब देगा तब आप समझ जाना किस तरीके से, किस सुर और किस ताल में आपको पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा मिला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। बहुत ओपनली परमेश्वर सहायता करता है। आपने तो देखा होगा कि जब हम वचन पढ़ते और मैं कुछ बात नहीं कर रही होती, मैं समझ जाती हूँ पवित्र आत्मा कुछ सिखा नहीं रहा है मुझे, तो मैं तुरंत बोल देती हूँ पवित्र आत्मा हमको सीखना है। और आप देखते हैं किस प्रकार से फिर परमेश्वर का आत्मा ज्ञान बुद्धि समझ हमारी चलाने लगता है ना। तो इतना एक्टिवली हमारे अंदर से पवित्र आत्मा सहायता करता है हमारा, तो ये आपकी बात को क्यों नहीं सहायता करेगा वो। आमीन। अब आप आगे देखिए क्या है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ओके, उनके पास जो भी रहता है सब बिगड़े हुए काम का इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस है उनके पास, किसको कैसे क्या करना है और क्या कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कहाँ पर जाने से, कौन से दिन जाने से, कौन से समय में कितना करना है, क्या करना है। ये इसके अलावा उनके पास कोई और प्लानिंग नहीं है, माइंड सेट नहीं है उनके पास। ओके, इसके लिए वो शुद्ध जीवन को बिल्कुल शोभा नहीं देगा, ऐसा ही जीवन वो जीते रहते हैं।
ओके। और दोनों शरीर से भी विवेक से भी वो अशुद्ध रहते हैं। अपने बुद्धि और विवेक दोनों में वो अशुद्धता ही पनपते रहते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, शुद्धता हमारा जीवन है और शुद्धता में आपको आना है तो उसका जरिया पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा से शुरू हो जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। आचरण के लिए खरी शिक्षा, 2 अध्याय पहले वचन से देखा। मैंने बोला था ना आपको कि काम कैसे हमको जीवन जीना है, उसके बारे में ही सब वचन पढ़ रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है प्रचार कर रहा है पौलुस। तो अभी 2 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। आचरण के लिए खरी शिक्षा हमें सिखा रहा है प्रेरित पौलुस। ओके, पहले वचन से, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब न दे, चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर का यह वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। हालेलुया। तो अब हमारा आखिरी समय चल रहा है इस पृथ्वी के ऊपर मसीहों का। ओके, आखिरी युग का ये समय चल रहा है। तो अब ये समय के अंदर हमको और ज़्यादा कुछ कमाने की सोचना नहीं है, कुछ बनने की सोचना नहीं है, कुछ बटोरने की सोचना नहीं है। हमको केवल ये गुणों के अनुसार चलना है जो इस 2 अध्याय में दिखाए हैं, और इसके अंत तक महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते हुए यीशु मसीह के आगमन के इंतज़ार लगाए हुए चलना है। कोई भी समय वो आएगा, हमको उसे तैयारी में प्राप्त करना है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। अगर आप पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं तो आप उठाए लिए नहीं जाएंगे। समझा आपको? आप ये अवस्था में मत रहिए माय डियर फ्रेंड्स कि जो क्रूस के ऊपर एक डाकू था, उसने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिया था और उसको प्रभु यीशु कह रहा था कि तू आज मेरे साथ पैराडाइज में दिखाई देगा। पैराडाइज वो जगह है जहाँ पर जो भले बुरे काम के अनुसार न्याय करने के लिए रखे जाते हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है। ओके, वहाँ से निश्चय किया जाता है कि अब उनको कहाँ भेजना है, स्वर्ग में भेजना है या फिर नरक में भेजना है। समझ में आया आपको? तो ये गलत फहमी में मत रहिए आप कि वो पैराडाइज में बोला है तो इसका मतलब वो पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया है फिर भी उसको प्रभु ने कहा तू पैराडाइज में रहेगा। ऐसे मत सोचिए आप। ओके, उसका भले और बुरे कामों के अनुसार एक
समय ठहराया गया है, उसका नाप तौल किया जाएगा और फिर उसका दिशा ठहराया जाएगा, उसको कहाँ भेजना है। समझ में आया? इस गलत फहमी में मत रहना कि उसको प्रभु यीशु के उद्धार में ले लिया, ये नहीं है वो। ओके, पैराडाइज वो जगह नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि बिना बपतिस्मा के भी यीशु में वो लोग उद्धार ले लिए, ऐसा नहीं है वो। ओके, अरे इतना क्या है, आप कुरनेलियुस को सुनो ना क्या बोला। ये तो हो गई चोर और डाकू की बात, लेकिन वहाँ कुरनेलियुस देखो, कुरनेलियुस यहूदी नहीं था, वो सिर्फ उसके नियम पालन कर रहा था, उसको पसंद आता था उनके रीति रिवाजों को पालन करना, और उसके रीति रिवाजों में, उनके रीति रिवाजों में, यहूदियों के रीति रिवाजों में वो आदर के साथ वो मिल बांट कर रह रहा था। इतना भी परमेश्वर को बहुत पसंद आया, उसके लेन देन के व्यवहार जो वो दिया करता था, मन रखा करता था, वचन को पालन करता था, उसको इतना पसंद आया परमेश्वर को कि उसने स्वर्गदूत को अरेंज करके, हाँ, प्रेरित को ठहरा के, हाँ, दर्शन दिखा के, हाँ, और जाके पानी का बपतिस्मा में डुबकी मारने के लिए उसको मजबूरी, मतलब रास्ता दे दिया। मतलब बिना पानी के बपतिस्मा के कुरनेलियुस को भी तो पैराडाइज मिल सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है उसको? इतना कुछ उसने अच्छा किया था। आप धोखा मत खाइए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आप देखो, आपको वस्त्र रखा है परमेश्वर ने, पहनना नहीं पहनना आपके हाथ में है। ओके, अगर आप जानते हैं कि आपको विपत्ति का शिकार होना पड़ेगा, तो आप अगर सुसाइड की बातें कर सकते हैं, हाँ, मरने की बात कर सकते हैं, अगर आप ये बोल सकते हैं कि मेरे लिए मरने की प्रार्थना करो, तो फिर आप ये प्रार्थना को क्यों नहीं महत्व देते हैं कि आप बपतिस्मा ले और विपत्ति ना रहे, बपतिस्मा ले और आसान रहे आपका जीवन, बपतिस्मा ले और आसानी से आप परमेश्वर के वचन का पालन करें। क्यों नहीं इस तरफ आपका ध्यान जाता है? क्योंकि जो दुष्टता के जगत की शक्तियां हैं वो आपको सुइसाइड आसान है ये बता रही है। या तो दुष्टता के जगत को बेनिफिट दे, प्रॉफिट दे, अधर्म के काम से, पाप को अपने अंदर रख के, अशुद्ध आत्माओं को अपने साथ बनाए रख के, या तो दुष्ट जगत को प्रॉफिट कर या फिर तू मर जा। है ले समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कितना आसान लगता है ना आपको ये करना, जो अशुद्धता आपको एंड रिजल्ट बता रहा है, चलो मरने के लिए ठीक है। हाँ, ये नहीं कह रहा है अरे बपतिस्मा लेके फिर बाद में देखेंगे विपत्ति मार डालती है या जीवन जीने देती है। क्यों नहीं डेयरिंग करते आप? मरने की तो डेयरिंग कर लेते हैं। हाँ, फिर ये डेयरिंग क्यों कहाँ जाती है आपकी? खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है कि आपको गाइड कर रहा है वो अनप्रॉफिटेबल होने वाला अभी दुष्ट आत्मा जो है, अब वो आपके फायदे में नहीं रहेगा, आपको फायदा नहीं दे सकता है और आपका फायदा ले नहीं सकता है। ये लेन देन अब कटने जा रहा है, तो क्यों ना आपको मार ही डाले। फिर ये दुष्ट आत्मा का प्लान है आपके लिए। समझ में आया ना? आप परमेश्वर के होंगे ना दुष्ट आत्मा के, जाओ किसी के भी नहीं, लटकते रहो ऐसे ही। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से दुष्ट आत्मा की चालाकी है आपके ऊपर। आपको पानी का बपतिस्मा लेके आपको जो होना है हो जाएगा, देख लेंगे। निकलो, आप करो ऐसा। ओके, आप इंतजार मत लगाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध जीवन आपने प्राप्त कर लिया, फिर बाद में जो होना है वो होना है, परमेश्वर उसका जिम्मेदारी है। समझ में आया? अगर पवित्रता आपको मालूम पड़ गया, अगर वचन आपको मालूम पड़ गया, अगर शुद्धता का जीवन की ओर आपका मन आकर्षित है, क्यों नहीं आप डेयरिंग करते हैं पानी के बपतिस्मा का? ओके, आप डेयरिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप विपत्ति को डरते हैं, विरोध को डरते हैं जो आपको जीना नहीं देगा। हाँ, आप मरने से डरते हैं, आप विपत्ति के क्लेश से डरते हैं। ओके, तो डर आपका प्रॉब्लम है, ना कि परमेश्वर। समझ में आया? डर आपका जिम्मेदारी है कि वो आपको अशुद्ध रहने के लिए मजबूर कर रहा है। समझ में आया? आपके लिए रास्ते बहुत है। आप परमेश्वर को बोलो, तेरा सुर ताल दे दे प्रभु, मेरी सुर ताल को बंद कर दे।
हाँ, मैंने बहुत लंबा समय ले लिया है, अब तो बस रे बस, अब तो बस होना ही होना है, ये तो या तो आर या तो पार, मुझे तो शुद्ध जीवन चाहिए। ओके, आप ये समय से परमेश्वर को लेना शुरू कर दीजिए। मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, मैंने आत्मा का अभिषेक ले लिया है, मुझ में परमेश्वर का अनुग्रह आया है। आप क्लेम करना शुरू कर दो, आप बोलना शुरू करो, दावा लगाना शुरू करो उसके ऊपर, क्योंकि वो अधिकार आपका है। इसीलिए तो वचन आपको समझ में आ रहा है, वो अधिकार आपका है, इसीलिए तो परमेश्वर का आत्मा आपकी चिंता कर रहा है। वो अधिकार आपके लिए परमेश्वर ने विरासत के तौर में खोल के आपके आंखों देख के बातों में आपको दिखा दिया है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसका मतलब बनता क्या है कि यही तो वो परमेश्वर है जो चाहता है आप अभी शुद्ध हो जाना है। हाँ, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। जब पानी का बपतिस्मा लेने का हिम्मत दिखाते हैं तो आप ये बोलो परमेश्वर को, तू जैसा इच्छा चाहता है वो इच्छा में मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। बात खत्म कर दो, निकल जाओ आगे। हालेलुया। इंतजार मत करो और कुछ बातों को समझने की, क्योंकि दुष्टता के जगत की शक्तियां आपके ऊपर कब्जा रखती है और वो आपको या तो मर जाओ कहती है या फिर अशुद्ध बने रहो और अशुद्ध में प्रॉफिट देते रहो, ये कहती है। आप दोनों भी मत करो, आप शुद्ध जीवन की ओर अपने सुर ताल ढूंढना शुरू कर दो, निकल जाओ आगे। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बता रही हूँ? ठीक है, बोल रही हूँ। आप आगे देखिए। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ जानने ना पाए। हालेलुया। ये बहुत बड़ा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर है जब वचन हमको सिखाता है वो। ठीक है, देखिए हम और एक बार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे 6 वचन से। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब न दे, चोरी चलाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है। ये सुरताल है परमेश्वर का। ओके, इसको पकड़ना है हमने, अपने खुद के सुरताल बंद कर देना है हमको। ओके, और अनुग्रह जो बताता है हमको, परमेश्वर का वचन जो बताता है हमको, उस सुरताल में अपने आप को भी चलाना शुरू करना है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो वह आप भी तो मनुष्य है ना, तो आपके लिए भी वही तो कारण है। अभी उसी सुरताल में आपको चलाना है, परमेश्वर आपको वही के अंदर से चलाना चाहता है। आमीन। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हालेलुया, तो जिम्मेदारी के साथ अपने आप को फेर लेना है उन बातों से जब सच्चाई आपको मालूम पड़ जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर में जो परमेश्वर का वायदा है, वचन है, उसके अंदर अपने आज्ञा पालन को दे देना है। पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज्ञा पालन है ये। ओके, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। वो छुड़ा लिया है हमको, और हमको छुड़ाने की कोई और ज्यादा ताकत जोर लगाने की जरूरत नहीं है। उसने छुड़ा लिया है हमको अशुद्धता में से। जैसा आप बोल रहे हैं ना, उस डाकू को परमेश्वर ने बोला आज तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, वही बात है ये। आपको छुड़ा लिया है, आपको बोल दिया है आप पैराडाइज में हो।
अब आप अपना भी तो काम कीजिए, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का, हालेलुया। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, हालेलुया। आपकी ओर से भी कोई आत्मिक संतानें तैयार होने लगे, फिर आत्मिक पावर से भरे हुए, आत्मिक सामर्थ्य से, गर्मी से, गर्माहट से, जलजलाहट से परमेश्वर के भक्ति करने वाले, ऐसे कुछ आपकी ओर से भी बनना शुरू हो जाना चाहिए अभी। ओके, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। ऐसी बातें बोलने के कारण हमको परमेश्वर के आज्ञा पालन में उतरना आसान है और हमें कोई तुच्छ भी नहीं जानना है। ऐसी बातें हम कह रहे हैं इसीलिए। ओके, तो ये बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करो, ना कि मरने की ओर, और ना ही आपके परिस्थितियां जो आपकी बदल नहीं रही है। वो तो 38 साल वाले उस रोगी के समान हो गया जो पुल के पास तो बैठा रहा लेकिन कुछ बदलता नहीं है उसका। उसकी सूरताल एक ही थी कि स्वर्गदूत आया, पानी हिलाया, डुबकी लगाया, लेकिन नंबर 1 नहीं ठहरा। ओके, उसकी सुरताल बदल नहीं रही थी। वो एंड रिजल्ट कैसे आएगा, उसको फिर वही सुरताल के अंदर से वो 38 साल तक वहीं पे पड़ा रहा। हाँ, आपके सुरताल बदल लीजिए। पानी में डुबकी लगाने का इंतजाम तैयार है आपके लिए। आप क्लेम करो, परमेश्वर ने मुझे शुद्ध कर दिया है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। देखिए कैसे बंधन टूटते हैं और आपको पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने वाले आपके घर में आके आपको इनवाइट करेंगे, चलो कल बपतिस्मा है, चलो निकलते हैं आज, हालेलुया। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंतजाम परमेश्वर करेगा और आपको रोकने वाली शक्तियों का इंतजाम भी परमेश्वर करेगा। क्लेम कीजिए, पैराडाइज को क्लेम मत कीजिए। ओके, वो डाकू को पैराडाइज मिला, छोड़ दीजिए वो बातें। ओके, और सुसाइड के को भी आप इनवाइट मत कीजिए, क्योंकि वो भी शत्रु का अच्छा पाला पोसा हुआ शैतान का आत्मा है वो। ठीक है, अच्छा हट्टा कट्टा आत्मा है वो, आपको देकर रखा है। अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको मार डाल, ये उसको दिया गया काम है। इसके लिए जब आप उसको छोड़कर जा रहे, दुष्टता के जगत को, अशुद्धता को छोड़कर जा रहे अभी, तो अब वो सुसाइड का आत्मा का काम है अभी आपको मार डालना, वही तो काम है उसका। इसके लिए वो आपको सोचे दे रहा है, क्यों जाना है पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, चलो उससे अच्छा मर जाते हैं। ओके, ये नहीं है हमारा जीवन। ओके, इसमें से बाहर निकलो और हमारा जीवन जहाँ पर है उसके अंदर आपने अपने मन को लगाना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है। और आपके लिए अगर परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है, यही वो कारण था वो डाकू का कि वो पैराडाइज में दिखाई दे रहा था। ओके, यीशु मसीह ने कहा आज तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, क्योंकि पैराडाइज में वो लोग होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के वचनों को तुच्छ नहीं जाना, भरोसा किया, और वो जो है यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, ये बात की जानकारी उनके अंदर आई, वो ही लोग पैराडाइज में जाते हैं। ओके, और जो दूसरा डाकू था, चोर था, जो क्रूस के दूसरे साइड में था, वो ठट्ठा कर रहा था यीशु मसीह का। ओके, वो कह रहा था अगर तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है तो तुझे क्यों टांगा गया यहाँ पर, हाँ तुझे क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ ऐसा लटकने का। यानी वो उसको हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था उसका, वो उसे ठट्ठा कर रहा था। उसके लिए वो वचन नहीं गया कि तू पैराडाइज में रहेगा, लेकिन वो ठट्ठा करने वाले को दूसरे जो चोर था उसने डांट लगाया। उसने बोला ऐसे मत बोल, वो परमेश्वर तेरा जब राज आए तो तू मुझे याद करना, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है, जैसा पतरस को रेवलेशन आया परमेश्वर का, जब यीशु मसीह ने पूछा था कि तू क्या जानता है कि मैं कौन हूँ, तूने क्या कहना है, तो सब बता रहे थे यीशु मसीह ये है वो है ऐसा है वैसा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा पतरस को तू क्या समझता है वो मुझे बता। तो उसने कहा तू परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है और तू परमेश्वर का बेटा है, तो यीशु मसीह उद्धार करता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये वो प्रकाशन है जो तेरे मांस और लहू ने तुझे नहीं दिया, परंतु ये परमेश्वर पिता ने तुझे जाहिर करके दिया। तो इस प्रकाशन के आधार से पतरस को कहा गया कि कलसिया तुझ पर बंधेगी।
नर्क के फाटक तेरे सामने टिकेंगे नहीं। हालेलुया। तो इस प्रकार का भविष्य मिलता है प्रकाशन आने से। तो वो पैराडाइस वाला जो इंसान था, जिसको जो डाकू ऐसा बोला, चोर जो ऐसा बोला यीशु मसीह को कि तेरा राज्य आए तब तू हमको याद करना, तो उसके ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया। हाँ, तो फिर निश्चित है उसका भविष्य कहाँ गया? अब भले बुरे कामों के अनुसार जो न्याय किया जाता है वहां चला गया वो। ओके, पैराडाइस में चला गया। लेकिन जो दूसरा चोर था उसके बारे में वैसा नहीं हुआ, वो डायरेक्टली नर्क में चला गया होगा, क्योंकि लाजर और जो रईस इंसान मर गए तब उनके बारे में यही कहा था, डायरेक्टली वो रईस इंसान जो था मर गया और वो नर्क में चला गया। ओके, उस आग में से वो लाजर को देखा कि अब्राहम की गोदी में आराम से बैठा है वो। ओके, तो वो स्वर्ग की जगह और नर्क की जगह डायरेक्टली लाजर उसमें था और डायरेक्टली वो रईस इंसान नर्क में था। ओके, तो चोर जिसने यीशु मसीह की ठट्ठा कर दी उसको तो डायरेक्टली नर्क में ही जाना पड़ा है। और फिर आप जो यीशु मसीह को जान रहे, तो अगर आपने शुद्ध जीवन होने का रास्ता नहीं चला तो आप भी पैराडाइस में ही जाओगे, क्योंकि आपको ये सारा प्रकाशन मालूम पड़ रहा है, आपको वचन मालूम पड़ रहा है। सिर्फ आपके अंदर अब हिम्मत नहीं है पानी का बपतिस्मा लेने का, तो वैसे भी तो आपको पैराडाइस ही दिया जा रहा है। समझ में आया? क्योंकि आपके भले और बुरे कामों के अनुसार न्याय हो जाएगा, तो आप पैराडाइस में हो अभी। ओके, लेकिन अभी आपको पानी का बपतिस्मा लेना है, आपको पूर्ण रूप से स्वर्ग को हासिल करना है। ओके, पैराडाइस में तो वो लोग रुके रहते हैं जो भले बुरे कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। ओके, और नर्क में वो लोग जाते हैं जो यीशु मसीह को जरा भी नहीं स्वीकारना चाहते हैं, बिल्कुल उसके विरोध रहना चाहते हैं। ठीक है, वो लोग नर्क के लिए ठहराए गए हैं। आप नर्क के लिए थोड़ी है, आप तो भक्ति कर रहे हैं प्रभु यीशु के। आपकी अवस्था कुरनेलियुस जैसी है। कुरनेलियुस ऐसा ही था, यहूदियों के सारी बातों के रीति के अनुसार चल रहा था और बहुत नामचीन हो गया था परमेश्वर के भक्ति के अनुसार के शब्दों का पालन करते हुए जीवन जीने में। बल्कि वो भक्ति के समय में वो यहूदी तो था भी नहीं। ओके, फिर भी इतना वो काम कर रहा था उसके अंदर के भय रखकर, यहूदी होने का भय रखकर कि यहूदी जैसे वैसे ही हमको रहना है। तो परमेश्वर का फर्ज बन गया फिर। ओके, जिम्मेदारी बन गया कि उसने अरेंजमेंट किया स्वर्गदूतों को, उसने अरेंजमेंट किया पतरस को, उसने अरेंजमेंट किया वहां पहुंचाने का, और फिर कुरनेलियुस और उसके घराने के साथ सब बपतिस्मा लेना। यानी बपतिस्मा इवन परमेश्वर को अरेंज करके देना पड़ा। हाँ, फिलिप्पुस वो खोजा के पास परमेश्वर ने पहुंचाया और वो खोजा बातें करते करते फिर पूछने लगा, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? यहाँ पे देख पानी, क्या मुझे मिल सकता है क्या बपतिस्मा? तो फिलिप्पुस बोलता है, देख यहाँ पर ही पानी है, अगर तू मन से विश्वास कर रहा है और तैयार है इस बात को कबूल करने की, जो तूने मेरे से सुना वो सच है, तो चल के बपतिस्मा लेते हैं। तो बपतिस्मा मतलब वो आपके जिम्मेदारी से भी आप ले सकते हैं। आपके अंदर उमड़ है ना कि मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, आप बढ़ के जाइए, ले बपतिस्मा। समझा? और अगर आप अब ये देखो, कुरनेलियुस के बारे में पूछेंगे तो उसको तो मालूम ही नहीं था ये सब बातें। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया था, इसके लिए बपतिस्मा उसको देने का पतरस ने इंतजाम किया। हाँ, पतरस के द्वारा इंतजाम लगाया उसके ऊपर। समझ में आया? आप तो जानते हैं बपतिस्मा के विषय में, तो आपने खुद होके बढ़ना है आगे। आप इंतजार नहीं लगाना है कि आपको कोई लेकर जाए बपतिस्मा के लिए, आपने खुद अपने समय को उठाना है और क्लेम करना है, बपतिस्मा मेरी प्रॉपर्टी है, सुइसाइड मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, अशुद्धता मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अशुद्धता से घृणा करती हूँ, मैं सुइसाइड से घृणा करती हूँ, मुझे चाहिए पानी का बपतिस्मा, और मैं पानी का बपतिस्मा मांगती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। फिर देखिए कैसे परमेश्वर आपकी अरेंजमेंट्स करा के देगा। हालेलुया, कितना आसान है आपका लाइफ। ओके,
बाकी शरीर के पीड़ाओं के अनुसार जो आपको पता है कि कुछ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दुष्ट के कब्जे में हैं और आपको ये सारी पीड़ाओं से होकर जाना पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी छुटकारे का प्रार्थना आपको समय समय पर सहायता करता रहेगा। ओके, क्लेश तो बहुत है, लेकिन आप मरने तक जाओगे ये तो आप नहीं है। फिर वो दुष्ट आत्मा है जो आपको क्लेश भी दे रहा है, मजबूर कर रहा है कि आप मर जाए, क्योंकि आपका उद्धार निश्चित हो चुका है, निश्चितता हो चुकी है आपके भविष्य की कि आप परमेश्वर में बहुत सामर्थ्य जीवन जीने वाले हैं। वो आने से पहले ही वो आपको कटवा देना चाहता है, वो आपके मुंह से बुलवाना चाहता है, क्योंकि बहुत दुख था, बहुत क्लेश था, इसके लिए आप मरने जा रहे। समझ में आया? तो वो मरने वाला अवसर आप क्यों उठा रहे? क्योंकि आपको क्लेश ऐसा दिया जा रहा है कि आपको दूसरा समय पकड़ने को मन बाकी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आपको बेजार करने का मतलब ही ये है कि आपको मरने के लिए प्रवृत्त करना। तो आप क्यों प्रवृत्त होते मरने के लिए? आपको परमेश्वर समय बदल कर देता है और आप बस इंतजार कीजिए, परमेश्वर बने रहिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं कितना और कहाँ तक। ओके, परमेश्वर के पास सब कुछ असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य है। हिम्मत नहीं खोना है किसी ने। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं, जो वचन आपको हमने मांगे थे समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए, आपने हमें उसके अनुसार सिखाया भी, हमारा मन उठा लिया आपके तरफ। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में दे देते हैं। आप बढ़ाइए हमको आगे और ज़्यादा फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में लेकर आइए। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।